کہ میلاد رسول کے بارے میں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے چند آیتوں کی تلاوت کی، اور بھی آیتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں پھر میں آپ کو صحیح حدیثوں کے ذریعے سے یہ بات رکھ سکتا ہوں، اور وہ احادیث جس کو لوگوں نے مانا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت اس قدر غیر معمولی واقعہ ہے دنیا کے اندر کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس زمین پر قدم رکھا تو ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اب میں تھوڑی دیر حضور کی میلاد اور آمد پر کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو حضور علیہ السلام کی ولادت کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، بلکہ جب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کے وقت الگ الگ نشانیوں کا ظہور ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک یہودی تجارت کی غرض سے مکۃ المکرمہ آیا ہوا تھا، اور اللہ اکبر یہودی کی بات کر رہا ہوں، ایک یہودی یعنی جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، وہ ان میں سے ایک شخص تجارت کی غرض سے مکۃ المکرمہ آیا ہوا تھا۔ اس نے ربیع الاول کی صبح کو لوگوں سے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اور پھر اس دن سوائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پورے مکے میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اندازہ کریں یہ آپ کا شہر ہے، جو کیا بس وہ کلیان آپ کا شہر ہے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ یہاں ایک ہی پیدا ہو؟ کسی دن درجنوں بچے پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں، غیر مسلموں کے گھر میں، اپنوں کے گھر میں، بیگانوں کے گھر میں۔ بستی جتنی بڑی ہوگی پیدائش اتنی زیادہ ہوتی ہے، اموات اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ مکۃ المکرمہ اس وقت بھی کوئی چھوٹی موٹی بستی نہیں تھی، وہ اس وقت بھی شہر تھا اور آج بھی شہر ہے، لیکن اندازہ کریں اس دن اللہ کے رسول کی شان یکتائی دیکھیں کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی ہے پورے مکے میں اس دن کسی اور بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اور جب وہ یہودی پوچھتا ہے کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تو اس وقت تو لوگوں نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر اس کے شہزادے عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بچہ ہوا ہے اور وہ بھی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی کو کیا دلچسپی تھی کسی کی پیدائش سے؟ جب اس نے سنا کہ آج مکے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بھی مطلبی ہے، ہاشمی ہے، تو اس وقت اس نے کہا کیا وہ بچہ مجھے دکھا سکتے ہو؟ اس وقت اس یہودی کو لوگ لے کر کے گئے۔ لوگوں کو کیا خبر تھی؟ لوگوں کو کر کے مجھے اس کی پشت دکھا سکتے ہو؟ جیسے ہی ابھی تو لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ پیٹ پر بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا پیٹ پر بھی کوئی چیز موجود ہے۔ اس وقت اس یہودی نے جب پیٹ سے کپڑا ہٹانے کی بات کی تو لوگوں نے اللہ کے رسول کی پشت انور سے جب کپڑے کو ہٹایا ہے تو اس پر مہر نبوت تھی، حضور کی پشت پر مہر نبوت تھی، اور اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، نیچے محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ۔ کبوتری کے انڈے جیسی ایک گول دائرے کی شکل تھی اور اس میں واضح لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ابھی کسی کو کچھ پتا نہیں کہ یہ ہستی کون ہے۔ ایسے میں اس نے جب مہر نبوت کو دیکھا چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور جب اس کو ہوش آیا تو اس وقت اس نے کہا افسوس بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو کر بنی اسماعیل کے اندر چلی گئی ہے۔ اندازہ فرمائے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنے نبی کی عظمت کو پہچانو۔ ہمارا نبی وہ ہے، ہر نبی آیا ہے شان والا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے جو بھی نبی آیا اس نے اپنی زبان سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابھی میرے نبی بولے نہیں ہے، یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ تو مہر نبوت پشت پر لے کر کے آئے ہیں۔
यहूदियों की जबान से जिसको कहलवाया कि ये अल्लाह का रसूल है, अंदाजा फरमाए अभी हुजूर झूले में है और उनकी नबूवत का जिक्र हो रहा है और हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त पर। वैसे तो अब मेरा दिल चाहता है, बेशुमार ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिसको लोगों ने मुशाहिदा किया, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए दो तीन बातों का इशारा करके आगे बढ़ता हूं। 1000 साल से ईरान में आग जल रही थी, 1000 साल, इसलिए कि ईरानियों का उस जमाने में मजहब था आग की इबादत करना। 1000 साल से वो आग जो जल रही थी उसको उन्होंने कभी बुझने, 24 घंटे लोगों की ड्यूटी थी कि वो आग को जलाते थे, आग को बुझने नहीं देते थे। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जमीन पे कदम रखा, कुदरती तौर पर वो आग ठंडी हो, अचानक बुझ गई। जलती हुई आग, तो कोई मोमबत्ती नहीं थी, कोई चिराग नहीं जल रहा था, बल्कि इतनी बड़ी वो आतशकदा था, बहुत बड़ा फारस का आतशकदा मशहूर था। अब 1 सेकंड के अंदर वो आग हुजूर के कदम रखा है मक्का शरीफ में, वाह वाह, और ईरान में आग बुझ गई। हुजूर की मिलाद है, मिलाद मुस्तफा है। मसला तो सबसे बड़ा ये है कि घर के लोग अगर दुश्मन हो जाए तो फिर शिकवा किससे है? कलेमा पढ़ के अगर लोग नबी की शान घटाने पर आ जाए तो फिर शिकवा किससे कीजिएगा? और आपसे भी कहता हूं, कोई लाख कलेमा पढ़ ले, लेकिन अगर वो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में हल्की बातें करता है तो आप कम से कम वफादार रसूल होने की हैसियत से इतना जरूर कर लीजिएगा कि उससे आप फासला बना लीजिएगा, क्योंकि कयामत के दिन मौलवी साहब ने जन्नत में नहीं ले जाना है, कयामत के दिन मौला मुस्तफा जाने रहमत ने जन्नत में, सुभान अल्लाह, सुभान, उनका वफादार होगा वही जन्नत में जाएगा। इतना ख्याल रखिए। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूँ, अपनी आखिरत के मामले में अगर आप बहुत संजीदा हैं तो आपको रसूलुल्लाह का वफादार बनना होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम से वफादारी करनी होगी। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, एक दरिया था जिसे दरियाए सावा कहते हैं, दरियाए सावा का पानी खुश्क हो गया और किसरा का महल था, किसरा का यानी ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे, और उसका महल था, उसके महल के 14 किंगरे अपने आप टूट कर गिर गए और जितने बादशाह पूरी दुनिया के थे हुजूर की विलादत के दिन सबके तख्त अपने आप उल्टे पड़ गए और दिन भर कोई बादशाह गुफ्तगू न कर सका। और उसी दिन काबतुल्लाह झूमा और हजरत आमिना के घर की तरफ वो झुका। इस मंजर को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आंखों से देखा कि सफा के मुखालिफ समत में मरवा की तरफ काबा झुक रहा है और उसी तरफ सैयदा आमिना का घर था। अंदाजा फरमाए उस दिन काबे में जितने बुत थे रखे हुए वो सब के सब औंधे पड़ गए, औंधे मुंह गिर गए। लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। और आपको ये भी हैरत होगी, अहदीस में आया है कि मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को और मगरिब के जानवरों ने मशरिक के जानवरों को एक दूसरों को मुबारकबाद पेश की कि अल्लाह का आखिरी नबी जमीन पर तशरीफ ला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आलमीन की आमद हो गई है। इसी तरीके से उस वक्त तो पूरे अरब में, मक्कतुल मुकर्रमा में तो हुजूर की विलादत हुई, लेकिन पूरे अरब में जितने बच्चे उस दिन पैदा हुए कोई बेटी पैदा नहीं हुई बल्कि सबके घर में बेटे ही बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा को इस वक्त तो 1501 साल अब होने वाले हैं, यानी 1500 साल पिछले साल मुकम्मल हुए और 1501 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा को हो गए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो आमद थी वो बेमिसाल थी। और फिर ये कि अल्लाह के रसूल जब जमीन पे तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले सजदा किया। ये भी आपको बताऊं, बच्चे पैदा होते हैं तो मिंबर जो है वो इसका लिहाज है, इसलिए मैं कोई तफसीरा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसको नहलाने की जरूरत पेश आती है, क्योंकि उसके ऊपर गंदगी, नजासत और बहुत कुछ होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल की विलादत के वक्त ऐसी कोई चीज नहीं थी
सब बच्चे नंगे पैदा होते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर पैदाइश के बाद आपकी अम्मी ने देखा कि सब्ज रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था और आप हर नजासत से पाक और साफ थे। जो भी बच्चा पैदा होता है, मैं आपको बताऊं, हया के पर्दे में कि उसके नाक के अंदर एक नली होती है जिसको नाल कहते हैं, और वो नाल इसलिए होता है कि उसी के जरिए से वो बच्चे को माँ के पेट में अल्लाह खाना खिलाता है। और खाना क्या होता है? माँ का जो नापाक खून होता है जो उन दिनों बंद हो जाता है, वही बच्चे की गिजा बनता है, तो उसके पेट के जरिए से अल्लाह उसको खिलाता है। एक बात आपको ये भी बता दूं, इंसान दुनिया में आके मुंह से खाता पीता है, लेकिन अल्लाह पेट में, माँ के पेट में मुंह से नहीं खिलाता। कहां से खिलाता है? नाप के जरिए से खिलाता है। क्यों? इसलिए कि उस दिन बच्चे की जो गिजा होती है वो खून से पलता बढ़ता है। अल्लाह पर इतनी शान वाला है कि दुनिया में मुंह से खिला रहा है और पेट में नाप से खिला रहा है। क्यों? अल्लाह को ये गवारा नहीं कि दुनिया में आकर जो मेरा बंदा मेरा और मेरे रसूल का नाम ले, नापाक खून उसकी जबान पर आ जाए। जरा गौर करना, यहाँ देख रहे हैं आप, अल्लाह ने नापाक खून माँ का हमारे मुंह पर आने नहीं दिया ताकि इस जबान से तू अल्लाह और रसूलुल्लाह का नाम लेगा, तू कलमा पढ़ेगा, अल्लाह रसूल का नाम लेगा। मुसलमान, तू गौर तो कर, ध्यान तो दे, कितना गिर गया है तू कि अल्लाह ने तेरी माँ के खून से तेरी जबान को महफूज रखा कि तू कलमा पढ़ेगा, अल्लाह रसूल का नाम लेगा। लेकिन तू दुनिया में आकर गीबत करता है तो मरे हुए भाई का गोश्त तू अपनी जबान पे लगाता है। जरा गौर कर, अगर गीबत कर रहा है तो तू मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है, फिर उसी मुंह से तू शराब पी रहा है, उसी मुंह से तू नशे की गोलियां खा रहा है। यानी कुदरत ने तेरी जबान की और तेरे मुंह की कैसी हिफाजत की, और तू बड़ा होने के बाद, दुनिया में आने के बाद इसी मुंह से गाली देता है, इसी जबान से गाली देता है। जरा गौर तो कर मेरे भाई, अपनी जबान की हिफाजत कर। जब कुदरत ने तेरी जबान की इतनी हिफाजत की माँ के पेट में, तो तू कुछ तो अपनी जबान की हिफाजत सीख। तो बहरहाल, तो बच्चे माँ के पेट में माँ के खून से पलते बढ़ते हैं, और अगर वो नाल ना हो तो बच्चा मर जाएगा। याद रखना, बच्चा मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो खाएगा पिएगा नहीं तो क्या होगा। लेकिन ये मेरे नबी का मौजज़ा है, हुजूर पैदा हुए, सारे बच्चे नाल के साथ पैदा होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के नाफ में वो नाल मौजूद नहीं था, क्योंकि तुम सब और हम सब माँ का खून पी करके पैदा हुए, और अल्लाह के रसूल रहमत आलम को माँ का खून नहीं पिलाया गया बल्कि अल्लाह के नूर से बनाया गया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हुजूर की अम्मी जान ने खुद कहा कि उनको नाल नहीं था, वो बगैर नाल के पैदा हुए। और फिर ये भी बता दूं, हर बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो उसका खतना किया जाता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी जरूरत नहीं पेश आई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ से ही चाहे वो इस शान से पैदा हुए कि और बच्चों की तरह खतना की जरूरत नहीं थी, और जिस्म पर लिबास लिपटा हुआ था, चादर लिपटी हुई थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जमीन पे कदम रखा और पहला काम ये किया, अल्लाह का नाम लिया और सर को सजदे में रख के कहा, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। आपको सामने मैंने हुजूर की विलादत का जिक्र कर दिया, बहुत से वाकयात हैं, ईमान ताजा होता है, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं, और हमें भी सफर के लिए रवाना होना है।